नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हनी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही जानी मानी शख्सियत। और अगर मैं बात करूं एक प्रोफेसर की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक काम करता है प्रोफेसर हमारी लाइफ में, क्योंकि एक लेवल पे आके हमें एजुकेशन से जो इंपॉर्टेंस जानकारी देते हैं वो एक प्रोफेसर देते हैं। और आए दिन देखा जाता है कि इस प्रोफेसर ने इस तरह की जानकारी दी और आए दिन प्रोफेसरों का नाम हम लोग किताबों में और साथ के साथ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में, चैनल्स पे पढ़ते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर का इनका पद है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एचओडी हिस्ट्री में भी है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा बच्चे दिलचस्प रखते हैं हिस्ट्री के अंदर। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले मनीषा जी, हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन आपने उस सब्जेक्ट को चुना, उसके अंदर पीएचडी और प्रोफेसर लाइन के आगे आप आगे बढ़े। जो सब्जेक्ट ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जो इस सब्जेक्ट से प्यार कर लेता है वो इसके अंदर घुसता ही चला जाता है डीपली। कैसा लगा, और जब इस लाइन को आपने पकड़ा तो आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही? My life journey with this subject has been very interesting. From the beginning, I've always been interested in this subject, and I was very passionate about history and always wanted to become a professor of history. And I think that history is your past. It is very necessary for us to know our past, not just for us, for everybody. It is important. And as far as our country is concerned, we have a very good past. I think a lot of people don't know that the first civilization was the Indian Indus Valley civilization, which belonged to India. Now, for everybody to know, it is very important that the history books should be understood to the students. That is why I think the study of history is very important. As far as my journey is concerned, I always wanted to become a professor of history, and my research has always been in history, and my research has been towards finding out about the old civilizations, the old empires, and it had been very interesting because I have always gone for field work, I've always gone for field visits, I've gone for excavations, so that made it all the more interesting. And I think that everybody should pursue this particular course because you come to know about your past. But ma'am, many people do not understand history. Many students does not take interest in this subject. But what is the procedure to take the interest in this subject? See, one important thing as far as when I have taught history, one thing which I think that should be made, to make this subject understandable to the students is to take them out to those particular sites. If a person goes to those particular sites where a particular incident has taken place, that thing makes it very interesting. अगर हम जाते हैं, हम historical visits करते हैं, जिसको हम heritage walk भी हम एक name देते हैं अपने subject में, और historical visits हैं, excursions हैं. एक तो ये एक तरीका है जिससे the subject can be made very interesting. And moreover, now we are using more and more of pedagogical methods to make this subject very interesting. Like we are making use of more ICT. Okay, ICT is very important now in history. PowerPoint presentations, ICTs, use of ICTs makes the subject very important. And the most important thing that I think is the historical excursions. इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मैम आजकल बढ़ गई है। वेब कैम्स का प्रयोग होने लगा है, वेब ब्राउजर्स का प्रयोग होने लगा है, पीपीटी जैसे आपने बात करी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लगातार बच्चों को नई नई स्किल से सिखाया जा रहा है। मतलब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी इतना आसान तरीके से आप लोग समझाते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ, मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। किस तरह से मैम एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है आजकल? लोग हिस्ट्री के अंदर जो पढ़ रहे हैं, किस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं? वही जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, तो वहाँ पर जो रिसर्च हो रही है दैट इज़ द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ रिसर्च. So what we are doing is we are looking for all the old documents, जितने भी पुराने manuscripts हैं. First of all, Delhi University में उनको रेफर किया जाता है. Most of the professors make use of the primary sources. Primary sources in history are very important. I don't know about other universities, but in Delhi University, origin कहाँ से हुआ है चीज़ का, हम उसको पकड़ते हैं. That makes the subject very interesting. Like if you go for the old manuscripts, because in Delhi everything is available. Most of the libraries are there in India. So we give an access to all the original sources to the students. And another thing, as I said earlier,
that historical visits, heritage walks are very important. मैम जिस तरह से हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिकल कम है, लेकिन आपने एक नई बात बताई है कि हिस्टोरिकल विजिट्स ये सब आप करवाते हैं, आप साथ में खुद जाती हैं बच्चों के। तो अगर पर्टिकुलरली एक मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करें तो उसको पर्टिकुलरली लेके आप लोग जाते हैं या बच्चा किस तरीके से समझ पाता है? बिकॉज हिस्ट्री हैज ओनली थ्योरी, ये अभी तक हम लोग भी पढ़ते आए हैं, देयर इज नो प्रैक्टिकल इन दिस सब्जेक्ट। नहीं, ये कहना मतलब थोड़ा सा गलत होगा कि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। एक तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस पे बच्चों को ले जाया जाता है। सो दोज एक्सकवेशंस मेक द सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो ओल्ड रिमेन्स पे काम करता है, जितने पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनमें कई बार छेड़छाड़ हो सकती है, ठीक है, वो मैनिपुलेट हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल हो, लेकिन जो ओल्ड रिमेन्स हैं, पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। तो वो एक प्रैक्टिकल यूसेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और उससे क्या होता है कि एक्सकवेशंस जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं उनको जब बच्चे देखते हैं, जब उनकी स्टडी करते हैं, तब उससे उनको बहुत इंटरेस्ट आता है और वो उस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग भी बना देता है और उसमें एक प्रैक्टिकल टच ले आता है। आपकी लाइफ जर्नी मैम किस तरीके से रही? बिकॉज पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहता है, लेकिन किसी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन आज आप इस पोस्ट पे हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? पापा मम्मी का रहा, साथ में हस्बैंड का रहा, किस लाइफ पार्टनर ने या किसने सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में रोल निभाया है यहाँ तक पहुँचने में? In my life, the most important contribution that has been of my parents. My parents have always been very inspiring and they have always motivated me. Whenever, even if there were failures in life, they always encouraged me to move forward. This was one reason why I always move forward. My mother especially, because a lot of time that I spent was with my mother. My father of course was also there, but yes, of course that a daughter always tends to spend more time with her mother. So my mother has also been a great source of inspiration for me. And after becoming a professor and in my journey as a professor, my husband has also been very motivating and very encouraging. For whatever, as when you enter into a family life and you have children, for women it becomes very difficult to cope with things. So if your husband is very cooperative, very encouraging, then it gives a boost to one, especially females. So that is how in my life my parents, my husband, and yes, of course, my sisters have also been very encouraging to me. They have always helped me out in whatever endeavors I have taken. बीच में मैम 2 साल कोविड ने बहुत बुरा हाल किया, बहुत लोगों ने अपनों को भी खोया, लेकिन कोविड के अंदर ये चीज़ों का एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी कि जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो गई है, जिसके अंदर काफ़ी केसेस भी आए कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और टीचर्स भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपका क्या रहता है, आप क्या टिप्पणी इस पर करेंगी कि ऑनलाइन क्लासेज एडवांटेज है या उसका डिसएडवांटेज है? बिकॉज वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम स्टडी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है जब तक बच्चा फिजिकली ना पढ़े। देखिए, ये जो वर्क फ्रॉम होम है, एज फार एज एजुकेशन सेक्टर इज़ कंसर्न, एक तरीके से फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये हुआ है कि उन्हें आईसीटी का यूज़ करना आ गया है, जो अभी तक उनको नहीं आता था। इवन जो ले स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली लेस बैकग्राउंड, दे डिडंट नो हाउ टू यूज़ आईसीटी, दे डिडंट नो द यूज़ ऑफ PowerPoint presentations, they didn't know the use of these Google Meets and various Zoom platforms. So they know now how to use them. And for the teachers also, all the teachers are not necessarily equipped with ICT. So the teachers also came to know now how to make more and more use of ICT. But yes, one disadvantage is always there, that जो classroom studies होती है, classroom teaching होती है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती ऑनलाइन टीचिंग। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को रहा है, बट अदरवाइज स्टूडेंट्स को आईसीटी का यूज़ इससे ज़रूर आ गया है।
क्या मैसेज रहेगा मैम एंड में व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री से जो बंदे और जो बच्चे डर रहे हैं, क्योंकि एक इंटरेस्ट मैंने आपको बताया शुरू से माइंडसेट है खासकर इंडियन पीपल्स का कि हिस्ट्री में नहीं जाना, बिकॉज थ्योरी बहुत होती है। आजकल लोग प्रैक्टिकल्स के अंदर ज्यादा आ गए हैं, जो चीज प्रैक्टिकल से समझ पाते हैं वो थ्योरी का रट्टाफिकेशन नहीं हो पाता। अब रट्टाफिकेशन वाला जमाना ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकल हो गई। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि इस सब्जेक्ट से ना डरे, इसके अंदर और इंटरेस्ट लें, और व्हाट इज द फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ द इंडिया? देखिए, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी, विच इज़ द टॉप मोस्ट सर्विसेज ऑफ इंडिया, अगर आप ट्राई करते हैं तो हिस्ट्री टर्न्स आउट टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वेदर यू आर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, अगर आप टॉप मोस्ट सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स स्विच ओवर टू हिस्ट्री, सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री। सो दैट मेक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर हम सर्विसेज की बात ना करें और जनरल भी बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, और पास्ट के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। एक बहुत ही छोटा सा मैं उदाहरण भी दूंगी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, उन्होंने हमारी पास्ट को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट रिसर्च नहीं हुई थी तब तक। तो उन्होंने मैनिपुलेट करते हुए ये बोला कि जो हमारा कोई अच्छा कोई पास्ट नहीं है, या पास्ट में हमने कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं की है। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने रिसर्च की, तब ये पता चला कि हमारा जो पास्ट है वो काफ़ी ग्लोरियस है। तो जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे हिस्ट्री को, तब तक हमें हमारा पास्ट क्या है, व्हाट इंडिया वाज, जिसको कहते हैं कि जो भारत है वो सोने की चिड़िया रहा, तो उस सोने की चिड़िया को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास्ट को पहचाने, जाने। एंड दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं और आप खड़े होते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दे माइट आस्क यू इज अबाउट योर country, about the past of your country, about the present of your country. So for that it is very important to study history. बहुत अच्छी बात बताइए कि जिस तरीके से भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमें इसके अंदर और जानकारी चाहिए, तो हमें हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से नहीं डरना है, और जितना हो सके हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह भरकर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो बच्चे इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से ना डरिए, और अगर डॉक्टर मनीषा शर्मा जी से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप हमेशा कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री की, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे लिए, हमारे भारत के भविष्य के लिए हमें अपना पास्ट जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।